جی مسٹر عبداللہ ہندی. ہاں جی کیا ہے، آپ بہت بہت غصہ دکھا رہے ہو، کیوں ایسا ہے بھائی؟ میں اس سے زیادہ غصہ دکھا سکتا ہوں اگر آپ پیار سے بات نہیں کریں گے تو. ارے کیا پیار سے بات کریں گے؟ آپ کو پتا ہے اسلام کیا ہے؟ آپ ریلیکس ہو کے بات کریں گے یا آپ مجھے غصے میں رکھ کے بات کرنا پسند کریں گے؟ میں یہ پوچھا آپ سے کہ آپ کو پتا ہے اسلام کیا ہے؟ اسلام سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا؟ کیا حال تھا سر بتائیے آپ. ہندوازم پڑھا ہے آپ نے؟ نہیں سر. پڑھ لیتے تو جو ہے آپ کو اسلام کی قدر معلوم ہوتی نا. میں ہندو نہیں ہوں نا سر. اور اسلام میں جب محمد صاحب آئے تھے اس ٹائم پہ ہندوازم تھا نہیں وہاں پہ. آپ مجھے قرآن میں ہندوازم یا سناتنی کا ایک بھی لفظ دکھا دیں پلیز. سنا آپ جانتے ہو سناتنی کسے کہتے ہو؟ مجھے نہیں پتا سر، آپ بتا دیجیے. سنا آتا ہے عربی ورڈ سنا، مسنا ٹو مینوفیکچر. سناتن سوری ہوتا ہے سنا مینوفیکچر، کسی چیز کو بنانا. مینوفیکچر. اچھا ایک سیکنڈ. آپ کا خیال ہے کہ سناتنی لفظ عربی لفظ ہے؟ ہاں جی بالکل عربی لفظ ہے. آپ کو کس ڈنگر نے بولا، ذرا پلیز مجھے ایکسپلین کر دیں، ریفرنس دے دیں کہ سناتنی ایک عربی لفظ ہے. سنا سنا ہے آپ نے کبھی؟ سر میں نے سنا ہے، سب کچھ سنا ہے، اس چیز کو چھوڑیں. مجھے یہ آپ نے ڈیفائن کر کے دینا ہے کہ سناتنی لفظ جو ہے وہ ایک عربی لفظ ہے، یہ آپ نے مجھے دینا ہے پلیز. آپ کیچ کرو نا، دکھاتا ہوں آپ کو عربی. آپ کو عربی نہیں مجھے آپ ریفرنس دیں، اسکرین پہ دکھاؤں گا سر، اسکرین پہ دکھاؤں گا، اسکرین پہ دکھاؤں گا سر. ایک سیکنڈ، اسکرین پہ دکھاؤں گا. جی میں نے کیا بولا، میں نے کیا بولا؟ حضرت سنیے پلیز، ٹرائی ٹو کمپریہینڈ تاکہ ہم آگے کے چل سکیں. چلیے. عربی کب پیدا ہوئی؟ عربی ہو سکتا ہے 2-3 ہزار سال پہلے پیدا ہوئی. 3000 سال پہلے؟ 100% جھوٹ بول رہے ہیں آپ. مجھے پروف کر دیں 3000 سال پہلے عربی پیدا ہوئی. 7 سال پہلے. نہیں ریسرچ نہیں کیا نا، آپ کے پاس انفارمیشن. ریسرچ نہیں کیا؟ اوکے. عربی جو ہے، عربی لغت 1500 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے، 1600 سال سے پرانی نہیں ہے زیادہ. ہاں ہوگی، ایڈوانس لینگویج ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یوز کرا. ایڈوانس لینگویج ہے. اوکے تو 1600 سال کے قریب کہیں پہ عربی ہے، 1600-1700 سال، 2000 سال سے بات کی ہے. اچھا اب ہمارے پاس بات آ گئی، یہ جو سنسکرت لینگویج ہے یہ کتنی پرانی ہے؟ اسپوکن میں کوئی لینگویج ہی نہیں ہے، سنسکرت لینگویج. اسپوکن میں سر کوئی لینگویج نہیں ہے، کتنی پرانی ہے؟ اسپوکن لینگویج ہے یہ جو ہے. کتنی پرانی ہے اسپوکن میں؟ سر میں نے نہیں پوچھا، اسپوکن میں کتنی پرانی ہے؟ 5000 سال پرانی ہے. 5000 سال پرانی ہے؟ چلے میں نہیں مانتا 5000 سال پرانی، میں نہیں مانتا. اسپوکن میں میرے مطابق یہ تقریباً 3500 سال پرانی ہے جو میں نے ابھی تک ریسرچ کی. ٹھیک ہے 3500 سال پرانی. اب مجھے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ عربی زبان میں ایک لفظ جو ہے وہ سنسکرت کا نہیں ہے بلکہ عربی سے لیا گیا ہے. دور فٹے منہ آپ پہ. جو زبان پرانی ہوتی ہے نا اس سے بھاڑے کا لفظ لیا جاتا ہے. نئی زبان جو ہے وہ بھاڑے کا لفظ نہیں لیتی. Once again, do not go to that fallacy. Now, coming back to the same point, I need a reference article from you. Can you please give me that? عربی سے پہلے ہیبرو تھی، ہیبرو کے بعد ارمائک آئی. دونوں بھی ریلیٹڈ لینگویج، سسٹر لینگویج، جیسے ہندی اور عربی ہوتے ہیں نا. پہلے ہیبرو کے بعد ارمائک. ہیبرو جو ہے موسیٰ علیہ السلام بولا کرتے تھے، اس کے بعد جیسس آئے ارمائک بولنا شروع کرے. جیسے کس نے کہا؟ کہاں پہ لکھا ہے کہ ارمائک کوئی بولنا شروع ہوا؟ جیسس کی کیا لینگویج تھی مجھے کیا بتاؤں؟ آپ بتا رہے ہیں نا ارمائک تھی، وہ مجھے بتائیے کہاں پہ لکھا، کہاں پہ لکھا؟ ارے بھائی بائبل، فرسٹ بائبل جو تھی ارمائک تھی. ارمائک سے جو ہے دکھائیے، فرسٹ بائبل ارمائک میں تھی، دکھائیے پروف، ایویڈنس. جرمن کے بعد انگلش بنی. بھائی جان ایویڈنس کیسا کروں میں آپ کو ریفرنس لا کے دوں؟ ہاں تو اور کیا کرنا ہے، ہوا میں بات کری جا رہے ہو. کمپلیٹ کریے. ارمائک کا مشہور جیسس کا سینٹنس جو آج بھی انگلش بائبل میں ہے، ارمائک لیما سبقتنی، پڑھا ہے آپ نے؟ یہ ارمائک میں ہے. ہاں کس نے کہا؟ کس نے کہا یہ ارمائک میں ہے؟ جیسس نے کہا ہے، ہر انگلش بائبل میں مل جائے گا. کس نے کہا ہے یہ ارمائک میں ہے؟ یہ لینگویج ارمائک. آپ بولیے کون سی ہے بھائی؟ کس نے کہا یہ ارمائک میں ہے؟ ارمائک ہے بھائی میرے. ارمائک کسے کہتے ہیں؟ کیا یہ ارمائک کی لینگویج کی ورڈ صحیح ہے. کس نے کہا؟ جیسس نے. کس نے کہا ہے کہ یہ ارمائک زبان کا لفظ ہے؟ ارے جیسس نے. انگلش بائبل میں بھی آج بھی ارمائک ورڈ ہوتے ہیں. یہ سینٹنس تو خاص طور پہ ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کو لے جا رہے تھے کراس کے اوپر تو آپ کا جو ہے یہی پکارنا تھا. تو جیسس کا کراس ہوا جو عربی میں بنتا ہے. جیسس کا کراس ہوا. جیسس کس کا مطلب ہے کراس ہوا؟ ہاں جیسس کا کراس ہوا. کراس پہ ہوا ان کو. ہاں بالکل. ڈیتھ نہیں ہوئی تو آپ مانتے ہیں؟ تو آپ مومن ہیں؟ ڈیتھ نہیں ہوئی. کراس ہوا، ڈیتھ نہیں ہوئی. کراس ہوا، ڈیتھ نہیں ہوا. نہیں. یہ کس نے بولا؟
क्रॉस पर डेथ होना जरूरी नहीं है, कई लोग क्रॉस पर ठहरते अच्छा, 4 क्रॉस दिन के पे बाद डेथ नहीं निकल होता, के आते हैं। नहीं होता, क्रॉस पे डेथ नहीं किसने होता। कहा आपको? अरे भाई आप जाके देखिए सोशल मीडिया पे हजारों लोग मिलेंगे जो क्रॉस पे हैंग किए, 4 दिन के बाद नीचे उतर के आए, 4 दिन के बाद नीचे उतर के आ गए, एग्जैक्टली कॉपी किए। 4 दिन के बाद नीचे उतर के आ गए। हाँ बिल्कुल। अरे क्या हाथ में कीला ठोकने से आदमी मर जाता है? नहीं मरता। अच्छा, हाथ में कीला ठोकने के बाद जो वो जो उससे पहले के जो हंटर पड़े वो कुछ भी नहीं होता उससे, कुछ नहीं होता उससे, वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं होता उससे, उससे कुछ नहीं होता। नहीं कुछ नहीं होता। मरना वाह एक वाह अलग वाह। चीज है। अरे अगर आपको अच्छा, हंटर मारे क्रॉस तो पसंद क्रॉस है, पे बंदा मरता नहीं है, क्रॉस पे बंदा मरता नहीं है। अरे ऐसा कौन सा क्रॉस है भाई मेरे? अच्छा, क्रॉस पे बंदा मरता नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। आप जाके वाह वाह सोशल वाह मीडिया वाह। पे देखिए 50 आदमी आपको जो है क्रॉस जी पे जी जी, क्रॉस पे exactly copy वो करते हुए कीले, नजर उनके दिखेंगे। हाथों पे कीले ठोकी, उसको पहले 600 हंटर मारे, वो हाँ, मरता नहीं है। 600 हंटर कहाँ लिखा हुआ है? 600 हंटर कहीं एडम भी नहीं सर, लिखा हुआ, नहीं, कहीं कहीं नहीं हुआ, कहीं भी नहीं लिखा नहीं हुआ, नहीं ओए नहीं, होए, नहीं। कहीं पे भी नहीं। हाँ तो सुनिए एडम आप, सर, तो जो So, है सना पे जा रहे थे अपन, एक कहाँ से सेकंड कहाँ रुकिएगा चले सर। गए? अपन सना को चेक कर लेंगे ना जरा, सना तना अच्छा, को सना चेक पे कर बाद में लेंगे चेक करते हैं, मुझे सना पहले, हाँ। आप मुझे सना सुना पे न जाएं, सना के तो हाँ। मैन्युस्क्रिप्ट भी हैं। हेलो हाँ। सर, हेलो एडम सर, जी सर। जी ईसा अलैहिस्सलाम को किरास भी नहीं हुआ था, वो पहले ही उठा लिए गए थे, मालूम, वहां तक पहुंचे ही नहीं थे, अब्दुल्ला से पूछ ले सर, वो कह रहे क्रॉस हुए थे। किरास ही नहीं हुए तो वो तो कह रहे, अब्दुल्ला तो कह रहे क्रॉस हुए थे। क्रॉस पे लगे थे, क्रॉस पे डेथ नहीं हुआ, उसके बाद नीचे उतारे, उसके बाद जो है क्रॉस- स्काई पे चले गए थे। नहीं सर, क्रॉस पे नहीं लगी थी, इनकी शक्ल में जो इनके साथ एक जो गद्दारी किया तो वो उनकी हाँ। शक्ल में हो गए थे ईसा अलैहिस्सलाम का, और उनको ले जाके क्रॉस पे डाल दिया और उनकी डेथ हो गई। और बाद में ये सब समझे, ईसाई जो थे, क्रिश्चियन, ये समझे कि जो है यही ईसा अलैहिस्सलाम है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम हाँ ये नहीं थे। आजकल का एक्सप्लेनेशन है, वो आजकल के लोगों का जो एक्सप्लेनेशन है, अरबिक लैंग्वेज में मुझे आपको कोई बताऊं, विटनेस नहीं है ना। हाँ अरबिक लैंग्वेज में बताऊं आपको, कब की पुरानी है। हाँ ये पता है इस्माइल मेरे को, कुरान की आयत है, इनको इस्माइल जो है अलैहिस्सलाम- सलेब पे मारा नहीं, सलेब भी नहीं किया गया, इनको मारा नहीं गया, और अल्लाह ने आसमान पे उठा लिया है, कुरान की आयत है। नहीं, एक मिनट इत्तेफाक भाई, मैं नहीं हुआ अरबिक लैंग्वेज कितनी पुरानी मैं आपको बताता हूँ। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब मक्का में आए, काबा में आए, तो फिर वो अरबिक सीख लिया और अरबिक बोलने भी लगे। अब बोले माशाल्लाह। इस्माइल हाँ। अलैहिस्सलाम का अच्छा, ये देखिए यार, आप मुझे कह रहे हैं कि उनको क्रॉस हुआ है, देखिए कहते हैं वो माँ कतलो वो माँ सलाबू, यहाँ पे तो सलाबू लिखा हुआ है हाँ, कि उनको सलीब हाँ भी नहीं हुई। सलेब, सलेब के मतलब है सलेब पे मर्डर नहीं हुआ उनका, कहाँ पे लिखा हुआ है? सलेब ये पे सेपरेट मारे है, नहीं। 2 वर्ड्स है, वमा कतलू और उनको किल नहीं किया गया, एंड वमा सलाबू और उनको सलीब भी नहीं हुआ, दोनों चीजें लिखी हाँ हुई है। चलिए सही है, सही है, सही बात, हम्म, सही है, सही है। सलेब भी नहीं हुआ, कत्ल भी नहीं हुआ उनका। हम्म। तो अब किसी ना किसी को करे वो तो हम शक्ल हो सकता है। क्या मतलब हम शक्ल हो सकता है? तो हम शक्ल किया था ना वहां पे, सलीब पे ईसा तो हाँ। नहीं चढ़े थे अकॉर्डिंग टू कुरान। नहीं एग्जैक्टली ओके, चलिए पहली बात तो आपकी गलत साबित हो गई कि आपने कहा कि सलीब पे चढ़े थे, सलीब पे नहीं चढ़े थे। दूसरी बात, आप मुझे कहते हैं अली अली लमा सबश्चनी, ये जो है हाँ। ये अरामिक का वर्ड है। यस ऑफ कोर्स। ओके, साम 22 इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? अली अली लमा सबश्चनी। ये तो जनाब हिब्रू जुबान आ गई, ये तो हिब्रू, अरमाइक, अरबिक, एक तो सबसे पहली बात कि अरमाइक नहीं होती। एक सेकंड रुके, पंजाबी, उर्दू और मेरे हिंदी बच्चे आपस में मिलते रुके, हैं। मेरे बच्चे रुके, हाँ। रुके। हाँ जी, अरमाइक नहीं होती, अरामिक। हाँ। बोलिए अरमिक। ओके चलिए सही। Aramaic. Okay. ओके Now, चलो Aramaic is a different language than Hebrew. They are two हाँ। different languages entirely. हाँ, हाँ, Okay. You cannot say कि पंजाबी और उर्दू. No, हाँ। don't do that. This is a fallacy. So, नहीं, दूसरे पॉइंट में भी आप गलत हैं, क्योंकि जो लफ्ज बोले गए थे वो साम 22 की याद दहानी के लिए बोले गए थे। एली एली लमा सबश्चनी, that is a Hebrew language word, not Aramaic. So come back to the same point now. मेरे Come पास जो back, लिखी वापस हुई है आते हैं, बाइबल है मेरे पास, वापस आते हैं। सर आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैंने आपको दिखा दिया सारा कुछ, ये आपके साथ स्क्रीन में है, ठीक है? जरा टैट कम। वापस आते हैं हमारे पास। अब आप असल में अपना मुद्दा रखें कि आपने जो 2-3 बोंगियां मारी, वो सारी की सारी बोंगियां मैंने यहाँ पे 2 मिनट में खत्म कर दी है, जैसा कि सब लोग देख रहे हैं, ठीक है? अब ये जो सना की गेम डाल रहे हैं आप मुझे बताएं, एक संस्कृत लैंग्वेज है जो कि अरबी आने से बहुत पहले बोली जा रही है। चलो सही। 1400 साल पहले जब अरबी बोली जा रही थी, तब भी वो वर्बल लैंग्वेज थी, उसके अंदर डायक्रिटिकल मार्किंग भी नहीं थे। आज से तकरीबन 1200-1100 साल पहले अरबिक लैंग्वेज को रिटन फॉर्म में बेहतर बनाया गया,
اور اس کے اندر हाँ सही डायक्रिटिकल है, मार्किंग बनाए गए. अब मुझे सही है. बताएं एक लैंग्वेज का क्या कंपैरिजन है उस लैंग्वेज से जो कि 3,500 साल से बोली जा रही है. लैंग्वेज सारे के सारे लैंग्वेज आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट हुई, फिर थोड़ी आदम थोड़ी अलैहिस्सलाम की चेंजेस जुबान हुई. कौन सी थी, मुझे प्रूफ कर दें प्लीज. तमिल थी आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान. तमिल थी, प्लीज मुझे प्रूफ कर दें. जी. आप जाइए हैदर अली, आपको पूरा डिटेल दे देगा, एक एक पॉइंट हैदर पे अली, दे देगा. हैदर अली को ये वही आई थी, उसका रेफरेंस जरा दे, मैं जरा देखता हूँ उनको ये वही कहाँ रिसर्च से है आई भाई थी. मेरे, उसका अपना रिसर्च है. सर मैंने आपको कहा है बताने कि का आदम पूरा अलैहिस्सलाम पैशन की था. जुबान तामिल थी. अच्छा तो आदम हाँ, अलैहिस्सलाम इंडिया में आए थे? ऑफ कोर्स इंडिया में आया था. नूह अलैहिस्सलाम अच्छा इंडिया में आया था. नूह अलैहिस्सलाम का तूफान इंडिया से स्टार्ट अच्छा हुआ. अच्छा अच्छा अच्छा, चलें बेहतरीन. तो फिर हजरत अस्वद भी इंडिया से लेके गए थे? नहीं वो आइडिया नहीं है मेरे को, लेकिन नूह क्यों अलैहिस्सलाम कुरान में आया क्यों था. क्यों क्यों तन्नूर से क्यों जो क्यों नूह अलैहिस्सलाम का स्टार्ट हुआ. क्यों? हजरत अस्वद जो है स्पेस से हजरत अस्वद ड्रॉप कहाँ हुआ से लेके गए, पहले ये बताएं. पॉइंट करने में. हाँ, हजरत हजरत अस्वद कहाँ से अस्वद लेके गए थे, इंडिया से लेके गए थे कि नहीं? आसमान से ड्रॉप हुआ था. हाँ आसमान से ड्रॉप हुआ था. पिन पॉइंट करने के मक्का किस जगह है, किस जगह जो भाईजान है हरम भाईजान बनाना भाईजान चाहिए. भाईजान हाँ भाईजान जी, आप गलत जी बोल रहे बोलिए. हैं, क्यों? आप गलत बोल रहे हैं. जी बोलिए ना, आप सही करिए. देखिए मैं आपको बताता हूँ, हजरत अस्वद जो है ना वो इंडिया से आया था. इंडिया से आया था कि मतलब कौन जी लेके जी आए जी थे? जी 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 हाँ ये हाँ इंडिया से बुत बुत परस्ती स्टार्ट की गई थी और हजरत आदम हाँ. अलैहिस्सलाम इंडिया से लेके गए थे. ये देखें, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है. ये किसने लिखा हजरत है? खलील आर्मीन से तशरीफ लाए थे. हजरत साद फरमाते हैं हजरत अस्वद हाँ. हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हिंद से लाए थे और इस वक्त वो सफेद चमकदार याकूत था. भाईजान मुझे बताइए कि हाँ, हजरत ये अस्वद लिखने भी वाले इंडिया कौन है? से आ रहा है, हजरत अस्वद भी इंडिया हाँ से आ रहा है, सारा कुछ तो हाँ, इंडिया से आ रहा है. तो बेसिकली तो ऑफ कोर्स आप लोग तो हिंदुओं में और मुसलमानों में फर्क क्या है? हजरत आदम भी इंडिया में आए, वही तो है. हजरत अस्वद भी हिंदुइज्म का इंडिया से आ रहा अपडेट है. इस्लाम है. तो आप सारे हिंदुइज्म के का सारे, अपडेट इस्लाम है. सर मैं आपको पता क्या कहता हिंदुइज्म हूँ, ले लो. मैं आपको बताता हूँ मैं हाँ, बताता हूँ मैं बताता हूँ, रुके रुके रुके, मैं आपको बोलो बताता हूँ. बोलो. आप ऐसा करें, घर बोलिए. वापसी कर लें. क्यों? क्योंकि घर हजरत वापसी, आदम भी मैं तो घर में इंडिया के हिंदू हूँ. थे, हजरत हाँ आदम ऑफ भी कोर्स इंडिया मैं के भी हिंदू हिंदू थे. हूँ. मैं भी हिंदू हूँ, आप लेकिन घर वो वापसी हिंदू कर ले नहीं भाई, जो मंदिरों को आप मानता हूँ. दोबारा वो से जो हिंदू है ना, जो आप आसमान दोबारा वाले को से मानता हूँ. आप हाँ, दोबारा से पत्थरों की पूजा कर ले, आप बेहतरीन जा रहे अरे हैं. खतरों की पूजा क्यों करूंगा भाई, जब कुरान मेरे पास है. जब आप तू कर रहे बोलेगा हैं. अरे क्यों हजरत करूँ? अस्वद के आगे झुकता कौन है जो कौन इंडिया झुकता से है? ले आया मतलब गया? पत्थर है. अरे यार उसका नाम खुद हजर है. हजर रहने के बाद क्या कोई मूर्ति है? हजर किसको बोलते हैं? तो हजर पत्थर है, किसको कोई बोलते मसला हैं? नहीं है, उसका पत्थर पूजा है. करे. खलास, इंडिया से गया, रखना चाहिए. पत्थर इंडिया है, से गया. वो भी टूट भी गया, 4 टुकड़े भी हो गया, 4 7 टुकड़े नहीं टुकड़े हो सर, गया. 4 टुकड़े हाँ, कब हुआ सर? 6 टुकड़े तो इस वक्त वहां पे पड़े हैं आपके इस वक्त जब खाना काबा में. टुकड़े से तो फिर अब अहमियत क्या है पत्थर की जब टुकड़े हो गया? एक सुनना था, नबी मोहम्मद साहब ने सल्लल्लाहु बड़ी अलैहि अहमियत वसल्लम दी को थी ना, क्या उन्होंने मतलब कहा था है? इस पत्थर को जाके हाथ लगाओगे तो तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे. हाँ बिल्कुल, नहीं जब ये अल्लाह ताला माफ करने वाला आसमान वाला है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला चांद को इशारा करो, सर टुकड़े हो मैं जाएगा. तो कह रहा नबी हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी किया. आप असल असल मजहब की तरफ आ जाए जो हज़रत आदम का था, हिंद का मजहब. ऑफ कोर्स तूफान भी जो है इंडिया से आया था. आज जो है तूफान भी इंडिया द्वारका से जो आया था. डुबावा है ना, कृष्णा का शहर जो द्वारका डुबावा है, ये नूह अलैहिस्सलाम की निशानी है. नूह अलैहिस्सलाम अच्छा, के तूफान की निशानी है. अरे माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बेहतरीन, सुभान आप क्या अल्लाह. समझ गए? सर आप ऐसा करें कृष्णा का यहाँ पे, नाम था सूरह नूह आयत नंबर 23. अच्छा जो वद्दा, श्री राम थे, इससे जो है जो हजरत श्री राम है वो भी मुसलमान थे, इसका मतलब है. अब राम थे नहीं थे ये तो कहानी है. एक लिखने वाला डाकू है. अच्छा हजरत श्री राम नहीं थे? डाकू लिखा है. वाल्मीकि एक डाकू था. वाल्मीकि जो है 1990 में इंडिया आया था. ये लोग उसको पूरा नीचे ऊपर करके जो है, तो मोहम्मद साहब ने भी तो डाके बहुत मारे ना, वो कोई मसला नहीं है, डाकू होना कोई प्रॉब्लम नहीं है. मोहम्मद साहब ने बहुत डाके मारे, प्रॉब्लम है. एक डाकू तो मोहम्मद साहब ने भी माने ना, मोहम्मद साहब ने डाके नहीं मारे. ये गलत बाइबल आदम लिखने है. वाला पॉल भी एक डाकू था. ओके, लेकिन मोहम्मद साहब ने भी डाकू नहीं मारे, डाके नहीं मारे. नहीं, हाँ बिल्कुल मारे, मारे ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. जब आप एक डाकू को मान रहे हैं, ठीक है, तो फिर राम जी के बारे में लिखने वाले डाकू को भी मान लें. बात या मानने का कहां से आ गया बात? एक डाकू भाई हजरत मोहम्मद को मान नहीं रहे आप, क्यों नबी है? अरे तो मैं भी तो पूछ रहा हूँ ना. एक तो डाकू हजरत मोहम्मद नबी है कि नहीं है, पहले बता दें. नहीं आता. और सर, रामायण कैसा लिखा? सर हजरत मोहम्मद नबी है कि नहीं है? नबी है, रसूल है, दोनों भी हैं. नबी और रसूल भी है. ओके, और अभी आपने एग्री किया कि हजरत मोहम्मद डाकू थे, आपने एग्री किया मेरे साथ? डाकू थे. क्यों डाकू? अभी आपने एग्री किया? नहीं 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 नहीं. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाके नहीं मारे लोगों के कारवान के ऊपर? नहीं, वो तो जो है ओके, बदर क्यों हुई? बदर क्यों हुई मुझे बताइए, बदर क्यों हुई मुझे बताइए.
ہاں بالکل اسی واسطے ہوئی کہ سارے مسلمانوں سے جو ہے بدماشی کیے تھے اپنی اوکے ایک ریفرنس دیتے ہیں کہ سارے مسلمان سے بدماشی کیے تھے. میں آپ کو ریفرنس دے دوں گا اس کے بعد کہ بدر اس وجہ سے ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سپاہی بھیجے جنہوں نے ڈاکے مارے اور اس ڈاکے مارنے کے عوض میں بدر ہوئی. آپ ریفرنس اپنا دیتے پہلے ذرا دیکھتے ہیں آپ کے پاس کیا ریفرنس ہے بدر کی ہوئی. ایگزیکٹلی یہ ریٹیلیشن میں ہے جب 11 سال ریٹیلیشن کس چیز کی ریٹیلیشن سر؟ ایک سیکنڈ دوبارہ بتائیے گا. ریٹیلیشن کس چیز کی؟ ریٹیلیشن اس لیے کہ مکے سے نکالا گیا آپ کو, نہیں بات قبول نہیں کی گئی. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں مدینہ کیوں آئے تھے؟ اوکے ونس اگین, کیا حضور نے لوگوں کے قافلے نہیں لوٹے جس کی وجہ سے بدر ہوئی؟ کیا آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں یہ ضروری تھا؟ کیا ضروری وارننگ دینا ضروری تھا کہ اب تمہارا ٹائم ختم ہونے والا ہے. سو محمد صاحب نے ان کے قافلے لوٹے, رائٹ؟ جی 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 لوٹے. ہاں جی بالکل لوٹے. کتنے قافلے لوٹے بدر سے پہلے؟ پتہ نہیں 4 یا 5 6 کچھ 7 ایسے ہیں. اوکے سو محمد صاحب ڈاکو ہوئے نہیں؟ ڈاکو نہیں ہوئے. قافلے لوٹنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ حق واپس لیے. اگر کوئی میرے سے بدماشی کرتا تو میں اس سے بدماشی کرتا ہوں. حضرت بدماشی بات میں کیجیے گا. قافلے لوٹنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ قافلہ کسی اور کا نہیں, جو اپنا سامان لے جا رہے تھے اس کو واپس لیے. سر جو مدینہ قافلے لوٹنے سر حضرت قافلے لوٹنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ قافلے لوٹنے والے کو نہیں, اپنا سامان واپس لینے کو کیا کہتے ہیں آپ یہ بتائیے. وہ بات کی بات ہے. اس وقت قافلہ جو ہے اس میں حضرت محمد کا سامان تھا. ہاں بالکل. کتنا لکھا ہوا ہے بتائیے. جو صحابہ چھوڑ کے آئے تھے ان کا سامان. نہیں یہ دیکھیں مکہ کی طرف جاتے ہوئے قافلوں کو لوٹا آپ نے, مکہ سے نکلتے ہوئے قافلوں کو نہیں لوٹا. بھی لوٹا, مکہ کو جاتے وقت بھی لوٹا. اوکے سو جاتے ہوئے کو جو لوٹا ہے اس میں تو نبی کا کوئی سامان نہیں نا تھا. دیکھیں آپ نے ایگری کیا سامان بیچ کے دوسرا سامان لے کے آ رہے تھے نا. رکے جو سامان جو قافلہ آپ نے مکے سے نکلتے ہوئے لوگوں کا لوٹا نا, چلو وہ میں آپ کی بات کو مان لیتا ہوں کہ وہ محمد کا اپنا ہی سامان تھا. لیٹس سے فار دا سیک آف آرگیومنٹ ناؤ جو مکے کی طرف جا رہے ہیں لوگ ان کا جو قافلہ لوٹا اس میں تو محمد کا سامان نہیں نا تھا کوئی. وہ جا کے بیچ کے آ رہے تھے نا, بزنس کرتے. بیچیں گے نا, جا کے بیچیں گے. وہ سر قریشی, وہ سر دیکھیں جو جا کے بیچیں گے انہوں نے محمد صاحب کا سامان تو نہیں لوٹا ہوا. اب مجھے بتائیں لٹیرے کو آپ کیا کہیں؟ سامان لوٹا تھا, وہی سامان لوٹا تھا, اسی کو جو ہے سر جی نہیں پروف کر دیں. آپ اپنا پوائنٹ میں مان جاؤں گا, میں چپ کر جاؤں گا. میں کیا پروف کروں, یہ تو پروفڈ ہے ہر جگہ. ہاں بالکل نہیں پروفڈ ہے نا سر, وارننگ دینا تھا سر. نہیں پروفڈ ہے, کہیں پہ پروفڈ نہیں ہے. محمد صاحب سن لیں, اب میں آپ کو آپ کا جواب دے دیتا ہوں. حضرت خدیجہ کی جب ڈیتھ ہوئی جی, حضرت خدیجہ نے کتنی جائیداد چھوڑی اپنی؟ پتا نہیں, مجھے آئیڈیا نہیں ہے اس کا. تھینک یو سو ویری مچ. اوکے اب جب جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے, یہاں پہ آ کے اب جو لوگ قافلے جا رہے ہیں کعبہ کی طرف, مکہ کی طرف, اس میں حضرت محمد کا سامان کون سا ہے؟ اگر آپ مجھے پروف کر دیں تو میں کہہ دوں گا حضور لٹیرے نہیں تھے, ورنہ تو وہ لٹیرے تھے. وہ تو سامان بیچ دیا نا, گئے سیریا میں. بیچے نہیں, ابھی تو وہاں پہنچے ہی نہیں. مکہ پہنچیں گے تو بیچیں گے. ہاں حضرت عبداللہ ہیلو لسن میں ہوں, مجھے نہیں پتا محمد کون ہے. میں مکے کی طرف جا رہا ہوں سامان لے کے, مجھے محمد صاحب لوٹ رہے ہیں. مکے کے خاص لوگوں کو جس کو بھائی جان مجھے محمد صاحب لوٹ رہے ہیں, مجھے بتائیں میرے قافلے میں محمد کا کون سا سامان ہے؟ آپ یہ بتائیے کس کو لوٹا, کیا لوٹا یہ بتائیے. ہاں قافلوں وہ میں بھی دکھا دوں گا آپ کو. ابھی آپ نے ایگری کی ہے نا. ارے میں ابھی دکھاؤں گا بھائی جان, میں بھی دکھاؤں گا بھائی, میں ابھی دکھاؤں گا. آپ کو پتا ہے کہ میں دکھا دیتا ہوں تو سارا کچھ, مجھے ٹینشن نہیں ہوتی. لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں انٹلیکچوئل لیول کی, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ مجھے بتائیے, آپ نے کہا کہ سامان لوٹا, یہ آپ نے ایگری کیا. آپ نے کہا کچھ قافلے جو کعبہ کی طرف جا رہے تھے ان کو بھی لوٹا, اور کچھ قافلے جو کعبہ سے باہر آ رہے تھے ان کو بھی لوٹا. آپ نے اس بات سے ایگری کیا, ٹھیک ہے. اب جو قافلے کعبہ کی طرف جا رہے ہیں اس میں تو محمد صاحب کا کوئی سامان نہیں ہے, ان کو کیوں لوٹا؟ بیچ کے لا رہے تھے نا واپس. کہاں سے بیچ کے لا رہے تھے؟ جو بچ کے چلے گئے جو بیچ دیا, اور جو واپس حضرت کہاں سے بیچ کے لا رہے تھے؟ کہاں سے قافلے آ رہے, کہاں سے تھے؟ مختلف جگہوں سے, یمن سے, یہ وہ سے, ادھر ادھر سے. یمن کا قافلہ وہ روڈ پہ نہیں آتا. اس روڈ پہ نہیں آتا؟ نہیں آتا اس روڈ. کس کا قافلہ آتا ہے اس روڈ پہ؟ سیریا والا قافلہ روڈ پہ آتا. چلے سیریا والا قافلہ آتا ہے, چلے آپ کی یہ بھی بات مانتے ہیں. سیریا سے قافلہ آ رہا تھا, سیریا سے قافلہ آ رہا تھا. ہاں جی. اس میں تو محمد صاحب کا کوئی سامان نہیں نا اس میں. جاتے وقت تو لے کے گیا تھا نا. نہیں جاتے ہوئے نہیں لے کے گیا تھا نا. لے کے گیا تھا جاتے, اسی لیے نہیں لے کے گیا تھا, وہاں سے آ رہا تھا.
जो गया था, जाते को जो ले गया था वहां पे सामान बेचा, वापसी में जो है वही अब सामान का अमा डंगर जी, अगर आप मुझे हम्म। इस चीज का रेफरेंस प्रोवाइड कर दें, मैं आपकी बात हम्म। मान जाऊंगा। रेफरेंस आप दे दें, म्यूट कर लें अपने आप को और नहीं, सर्च कर लें और रेफरेंस लें। भाई सर क्लेम अंडरस्टैंडिंग आपका, रेफरेंस आपको प्रेजेंट बिटवीन द करना लाइन्स पड़ेगा, सिंपल सी बात है। क्या सर बोले? देखिए क्लेम हम्म। आपने किया जी। कि उन्होंने मोहम्मद साहब का सामान बेचा था, जी। उसकी इवज पैसा लेके वापस आए थे तो मोहम्मद साहब ने लूटा। अगर आप इसके ऊपर मुझे रेफरेंस प्रेजेंट कर दें, रुक जाए, लिसन टू द क्वेश्चन, लिसन टू द क्वेश्चन, लिसन टू द क्वेश्चन, लिसन टू द क्वेश्चन, सवाल सुने। आप मुझे वेट करें, म्यूट करें अपने आप को, रेफरेंस सर्च करें और वापस आ जाए, रेफरेंस दें। जब सुलह हुदैबिया हुआ सर रेफरेंस, सर आई डोंट जी। केयर सर, मैं आपको निकाल दूंगा अगर आप मजीद बोलेंगे विदाउट रेफरेंस। मैंने आपसे सिंपल सी बात किया, आपने क्लेम किया, सुलह हुदैबिया याद है आपको? सर आपने शट अप एंड लिसन नाउ, आपने एक चीज क्लेम की है, सुलह हुदैबिया हैज नथिंग टू डू विद दिस राइट नाउ। अभी हम हिजरत के, अबे शट अप, अभी हम सिर्फ हिजरत के ऊपर हैं, सुलह हुदैबिया बहुत बाद में हो रही है, तो चार चीजों को मिक्स ना करें। आपको अगर नहीं पता तो नहीं पता, लूटा गया ना सामान सुलह मैंने हुदैबिया के बाद, अभी जो बात कर रहा हूँ, लूटा गया सुलह हुदैबिया के बाद। अब्दुल्ला जी बोलिए। अब्दुल्ला सुनो, जी बोलिए, बोलो। सुलह हुदैबिया बहुत बाद में हो रही है, नहीं, चुप करके हो सुनो, रही है। सुनो, मैं चुप बोल रहा करके हूं ना, मेरे सुनो। पास है रेफरेंस, सुलह हुदैबिया के बाद हुआ सब। शट अप इडियट, सुलह हुदैबिया बदर से पहले हुई है? अंब का पता नहीं है तुम्हें? सुलह हुदैबिया बदर से पहले हो गई है, डंगर इंसान। लाओ दो, कहां पे लिखा हुआ है बदर से पहले हो गई सुलह हुदैबिया? सुलह हुदैबिया हुआ, फिर उसके बाद जंगे बदर हुई। हेलो, सुलह हुदैबिया में क्या हुआ था? ये हुआ था कि जो भी काफिर मुसलमान हो जाए उसको वापस कर देना चाहिए, जो भी मुसलमान काफिर कब होकर हुई मक्का थी? जाएगा उसको वापस नहीं किया कब हुई जाएगा। थी? कब हुई थी? मेरा ख्याल है हिजरी के तीसरे चौथे साल में, कितने साल में? हिजरत होने के बाद तीसरे साल चौथे साल। ओके, अच्छा, तो जो पहले 3 सालों में काफिले लूटे वो किधर गए? नहीं, उसके बाद काफिले लूटे, उससे पहले नहीं लूटे। उससे पहले नहीं लूटे? किसने कहा? नहीं, मैं बता रहा हूँ किसने कहा? आपको, आप बताइए उससे किसने पहले कहा? लूटे, आप बताइए उससे बदर, पहले लूटे। सुलह हुदैबिया कब हुई, मुझे ये बताएंगे आप? बताइए, मोहम्मद साहब की वफात कब हुई? कौन मौलाना साहब? मोहम्मद साहब की वफात कब हुई? तकरीबन 23 साल के बाद, नबूवत के 23 साल के बाद। ये देखें आपके सामने स्क्रीन पे आने लगा, स्क्रीन पे आ रहा है आपका हुदैबिया जो है ना, वो दुल्हज्जा आफ्टर हिजरी 6 साल आफ्टर हिजरी हुई है सुलह हुदैबिया, जी करेक्ट? हाँ। कब हुई है सुलह हुदैबिया? छठी हिजरी में। अभी आपने कहा 3 साल बाद, मैंने आपको बताया 6 साल बाद, करेक्ट? सही है। कितने साल बाद हुई है? मुझे रेफरेंसेस, फिर मुझे भी मेरे रेफरेंसेस देखना पड़ेगा। 6 साल बाद हुई है, 3 साल बाद हुई है? मुझे मेरे रेफरेंसेस देखना पड़ेगा ना। अब आप विकिपीडिया पे देखे, तो चलो 6 देख साल के लेके आए, चलो मान देख के लेके आए, चलो मान देख के लेके हैं। आए। हाँ, अच्छा मेरी बात देख के, इतना टाइम नहीं है यहाँ पे, हमें जो बाद में लाएंगे। नहीं नहीं, मेरे को बहुत टाइम होता है, मुझे इस किस्म की चीजें तोड़ने का मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? मुझे बहुत अच्छा लगता है इस किस्म की सारी चीजें तोड़ने का। अच्छा, जो एक्सपीडिशन ऑफ हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब था वो किस हिजरी में हुई? मुझे कहाँ यार, पूरे नोट्स 623 हिजरी में, ठीक है? 623, ठीक है? 628 में हो रही है सुलह हुदैबिया, 623 में पहला हुआ। उसके बाद दूसरा जो है एक्सपीडिशन ऑफ उबैदा इब्ने अल हारिथा, ये कब हुई? 623 में। उसके बाद जो थर्ड एक्सपीडिशन है अल करार की, वो ही 623 में। 3 एक्सपीडिशन आपने 623 में की है। उसके बाद वदान का जो इलाके में मसला हुआ वो कब हुआ? वो भी 623 में हुआ। अब बवात जो है वो कब हुआ? 623 में हुआ। हाँ जी। एक्सपीडिशन ऑफ बदर कब हुई? बोलिए कब हुई? 623 अक्टूबर 623, सेकंड हिजरी। आप मुझे कह रहे थे पहले कि सुलह हुदैबिया ये बदर से पहले हुई। मैंने आपको कहा था आप मुझे झूठ बोल रहे हैं, मैंने इसलिए आपको वहां से निकाला था ताकि मैं आपको कह सकूं, दिखा सकूं कि आप झूठ बोल रहे हैं।
اب جب بدر ہو رہی ہے 623 میں اور صلح حدیبیہ ہو رہی ہے 606 ہجری میں، ٹھیک ہے 628 میں، تو بدر سے پہلے صلح حدیبیہ کیسے ہوگی؟ ذرا مجھے یہ ثابت کر دیں، باقی باتیں بعد میں کریں گے. چلیے صحیح، آپ جو بول رہے ہیں صحیح ہے. چلیے میں ریفرنس دیکھتا ہوں. صلح حدیبیہ بدر سے پہلے نہیں ہوئی تھی. ہاں چلو نہیں، آپ نے ایگری کر لیا کہ بدر سے پہلے صلح حدیبیہ نہیں ہوئی تھی. چلیے آپ کے بعد آپ نے ایگری کر لی ہے، آپ نے ایگری کر لی ہے کہ آپ نے ایگری کر لی ہے کہ صلح حدیبیہ بدر سے پہلے نہیں ہوئی تھی. یس اوکے، اب مجھے بتائیے بدر صلح حدیبیہ سے پہلے محمد صاحب جو قافلے لوٹ رہے تھے وہ کیوں لوٹ رہے تھے؟ وہ بتائیے. واپس آتے ہیں. اس لیے کہ مکے والے وہاں سے بہت ظلم کیے تھے، بہت پریشان کیے تھے، سامان سب جو ہے لوگوں کا تو محمد صاحب لٹیرے بن گئے. میرے اوپر کسی نے ظلم کیا، میں لٹیرا بن جاؤں؟ ہاں جی، میرے اوپر کوئی ظلم کیا ہے، میں لٹیرا بن جاؤں؟ ہاں جی بن جائیے. بن جاؤں؟ ہاں جی، کیونکہ کسی نے میرے اوپر ظلم کیا تو میں لٹیرا بن جاؤں اور میں پروفٹ بن جاؤں گا، رائٹ؟ پروفٹ کیسے بنیں گے آپ؟ پروفٹ بننے کے لیے تو بہت سی چیزیں پہلے آپ کو جو ہے. آپ پروفٹ بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے میں بتا دیتا ہوں. پروفٹ بننے کے لیے آپ کو بچیوں کا ریپ کرنا ہے چھوٹی عمر میں، ان کے ساتھ شادی کرنی ہے. کسی کے گھر جائیں، وہاں پہ آپ کو دودھ پیتی ہوئی بچی نظر آئے، او جب یہ بڑی ہوگی، جب یہ بڑی ہوگی تو میں اس کے ساتھ شادی کروں گا. بھائی میرے 3 سال میں اپنی بہن سیتا سے شادی کیا. 3 سال میں بہن سیتا سے شادی کیا. راماسوامی پریا رامائن آپ کو بھی اوکے چلیں ایسا کریں، ریفرنس دے دیں ابھی کہ 3 سال میں اس کے ساتھ شادی کیا. ابھی نکالے ریفرنس، لنک بھیجیں، ابھی میں کھول دیتا ہوں. چلیے ابھی میرے پاس فوٹو 3 سال کی عمر میں اس کے ساتھ شادی کیا اور اس کے ساتھ سیکس کیا. پلیز دکھا دیجیے. 3 سال کی عمر میں. کس سال کی عمر میں؟ ہاں جی بالکل، آپ کو 3 سال کی عمر میں نا. بک کا نام ہے، ارے بتا رہا ہوں، نہیں ریفرنس پورا پیج نمبر 160. بھائی ہیلو دے رہا ہوں، رامائن کا ایک چیپٹر ہے مول رام کتھا. ارے آپ کو دے رہا ہوں میں، آپ کو دے رہا ہوں. ہیلو مسٹر مجھے لنک ریفرنس لنک دیں. آئی ڈونٹ کیئر، ریفرنس لنک دیں. بالکل سنیے، یہ ریفرنس آپ کو ملے گا سائنس جرنی رامائن I don't care about science journey. I don't care about science journey. آپ کو بک مل جائے گی، بک کے پیجز آپ کو دکھا دے گا. وہ ایک سیکنڈ لکھے ہوئے، ایک سیکنڈ بچے رکے. یار ہندو چاہیے مجھے کوئی جو اپنے اسکرپچر جانتا ہے. کون سا ہندو؟ جلدی سے مجھے بولو جو اپنے اسکرپچر جانتا ہے. یہ ہر جگہ پہ جا رہے ہیں، ان کو بھی میں نے بائبل میں پکڑ کے ان کو ذلیل کر دیا. مجھے ہندو بھی چاہیے جو اپنے اسکرپچر جانتا ہوں، جس کے پاس ریفرنس ہو اپنی بکس کا. کون ہے؟ مجھے لائیو چیٹ میں بتائیں، میں اسٹریم میں جگہ بتاؤں گا. یار شٹ اپ یار، صبر کر. مجھے ہندو چاہیے جس کو اپنے اسکرپچر پتا ہو. مجھے چاہیے وہ بندہ جو اسکرین پہ مجھے دکھا سکے. کون سا ہندو ہے یار اس وقت جو مجھے اسکرین پہ دکھا سکے؟ اسکرین پہ دکھا سکے کون سا ہندو ہے؟ لائیو چیٹ میں مجھے بتائیں یار کون سا ہے جس کو سناتنی ہندو جو اس کو پتا ہو اپنے اسکرپچرز کا اور اسکرین پہ دکھا سکے مجھے یہاں پہ ابھی کے ابھی. یونیورسلسٹ آپ نے پرائیویٹ چیٹ میں لکھا، آپ دکھا سکتے ہیں. آپ لائیو ہیں اس وقت؟ جی میں لائیو ہوں. ہاں جی آپ لائیو ہیں اس وقت. جی جناب آپ دکھا سکتے ہیں. جی بالکل، میں آپ کو دکھا دیجیے سر. ان کو ریفرنس دکھائیں جی. یہ کہہ رہے 3 سال کی عمر میں شادی ہوئی، کہیں پہ لکھا ہے؟ 1 منٹ جی، میں شلوک ہی آپ کو بتا دیتا ہوں. میرے اسکرین دکھائی دے رہی نا؟ اچھا نہیں، جو یہ ریفرنس بول رہے ہیں، ہاں یہ آپ کی اسکرین دکھائی دے رہی ہے. جب آپ وہاں تک جائیں گے یہ آپ کی اسکرین آ گئی. جی سر زوم کر دیں. نہیں سر یہ آپ کیا دکھا رہے ہیں؟ یہ نہیں مجھے چاہیے، سوری. مجھے یہ شلوک ہے، نہیں چاہیے. یہ شلوک ہے جی، یہ سنسکرت شلوک ہے. اچھا سنسکرت شلوک ہے. اوکے زوم کریں. ہاں مجھے سنسکرت آتی ہے تو میں بتاتا ہوں. زوم کریں. کنٹرول پلس زوم کریں. آ گئی؟ اور زوم کریں. اوکے جی اب پڑھیں کیا لکھا ہوا. یہ لکھا ہے ماما بھرتا کا مطلب ہوتا ہے ہسبینڈ. مہا تیجا مطلب جس کا جو ایلومینیشن انلائٹن ہوتا ہے نا. وایس کا مطلب ہوتا ہے ایج. آج بھی تیلگو میں وایس کہتے ہیں، میں تیلگو ہوں. پنچ مطلب 25. اشٹادش ہی ورش. اشٹا مینس 8. جرمن میں آکٹ کہتے ہیں، انگلش میں بھی 8 کہتے ہیں. تو اشٹدش مینس 18 ایئرس. مطلب جو سیتا میاں ہے وہ 18 ایئرس کا ہے، اور جو بھرتا ہے وہ 25 ایئرس کا ہے. اوکے تھینک یو سو ویری مچ. جی عبداللہ جی آپ لائیو اسٹریم میں ہیں، آپ کے سامنے ریفرنس آپ کے سامنے ہے. اب آپ پریزنٹ کر دیں اپنا ریفرنس. آپ کو
माइक आपका खुला है, बोलिए सर। आपके लिए मैं लिंक भेजाऊं, ज्वाइन पे सर लिंक मुझे भेजाऊं, आप लिंक खोलिए। उस लिंक में, सर मुझे लिंक नहीं चाहिए, यूट्यूब की वीडियो मैं यहाँ पे नहीं चलाऊंगा। आपने उस यूट्यूब की वीडियो में रेफरेंस देखा, उसको जी। स्क्रीन पे लाएं जिस तरह भाई लेके आए हैं, हाँ हाँ। लाइए। ये फोटो शेयरिंग हो सकती है इसके ऊपर? बिल्कुल हो सकती है सर, बिल्कुल हो सकती है। फोटो शेयरिंग हो शेयर सकती करें। है? हाँ? शेयर करें, शेयर करें। नहीं, पता नहीं कैसा शेयर करते, फोटो कैसा शेयर करते हैं? I don't know, शेयर फोटो स्क्रीन कैसा के ऊपर शेयर क्लिक करते करें हैं, जैसे लिंक भाई तो ने शेयर हो गया, किया, लेकिन फोटो कैसा शेयर करें? स्क्रीन पे शेयर करें, पूरी स्क्रीन अपनी शेयर करें जिस तरह भाई ने किया। I don't know कैसा करते हैं। स्क्रीन शेयर का कोई करें, ऑप्शन करें। है इसमें? सर बिल्कुल है, स्क्रीन पे शेयर करें, क्लिक स्क्रीन, शेयर स्क्रीन, और अपनी पिक्चर खोल के शेयर कर दें उसको। सर यूनिवर्सल जी, थैंक यू सो वेरी मच, स्टे इन द स्ट्रीम। अभी आपको शायद जो ये रेफरेंस दे देंगे वो भी आपको खोलना पड़ेगा। आपके पास ओके ये जी। सारी किताबें हैं ऑनलाइन ना? मुझे संस्कृत आती है जी, मैं पकड़ लेता हूँ। बेहतरीन हो गया सर, आप बहुत चीते हैं। स्टे ऑन द स्ट्रीम, बाज दफा मुझे जरूरत पड़ जाती है आप जैसे भाइयों की। थैंक यू भाई आपके लिए। तो देखें सर, आपको काफी लोग थैंक यू बोल रहे हैं, देखें काफी लोग आपको थैंक यू बोल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी मिस्टर अब्दुल्ला जी, अच्छा बात ये है, इस्लाम को बचाने के लिए ये कहीं पे भी जाएंगे, ये हिंदू पे भी जाएंगे, ये क्रिश्चियन पे भी जाएंगे, यहूदी पे भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे, मोहम्मद साहब को बचाने के लिए हर जगह पे जाएंगे। अपनी स्क्रीन दिखा भाई अब्दुल्ला, तेरे से वेट कर रहा हूँ स्क्रीन दिखाने का। मैं तो वेट कर रहा हूँ, अब तो मेरे पास बंदा बैठा है जो मुझे दिखा देगा सब कुछ। अभी 1 मिनट दिखा रहा हूँ, क्यों फिक्र कर रहे हो? दिखा ना यार, अब तो वेट कर रहा हूँ मैं। 1 मिनट, हिंदुइज्म कहाँ है भाई? हर जगह जाना है इन्होंने, अब्दुल्ला सिर्फ मोहम्मद साहब को बचाने के लिए। कम ऑन कम ऑन। वो लिलियास शराफुद्दीन है ना, लिलियास शराफुद्दीन, हाँ टिले 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 की कहीदा है, और टिले कंडोए दी बदैश, वो भी एंजी करदा, सज्जे खबे सज्जे खबे सज्जे खबे है। अब्दुल्ला तेरे पास 5 हाँ। मिनट दिखा दे, नहीं तो मैं फिर आगे चलने लगा हूँ। अरे इसका खैर भाई, मतलब मैं फारिग निकलने दे जरा, मैं कहाँ रखा, सेव करके रखूंगा तो निकालूंगा ना, ढूंढना निकाल पड़ेगा ना मेरे यार, तू तो पूरे कॉन्फ्रेंस से आया था, 3 साल में तूने शादी करा दी। अब्दुल्ला भाई आप हैदराबाद से हो क्या? बहन से, अपनी बहन से शादी हुई, अपनी बहन से। हमारे यार 3 साल के अंदर तूने शादी करा दी, आ ना दिखा ना। ये है मूल राम कथा, चलिए मिल गया। यार ये मूल राम कथा क्या होती है, पहले तो मुझे ये समझाओ यूनिवर्सल ये साहब। रामायण का एक चैप्टर है। रामायण का चैप्टर है? गलत है जी, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है। ऐसा कोई ये मैं चैप्टर ही नहीं है आपको जनाब। शेयर कर- नहीं, अरे कैसा, आपके कथा- सामने है, कथा आपकी नहीं किताब होता है, है। मैं क्या करूंगा? अब्दुल्ला शेयर स्लाइड, हाँ क्या कथा दिखा रहा है मुझे? कथा तो पान के एक ऊपर लगाया जाता है। कथा कहते हैं स्टोरी को संस्कृत में। इधर, अब आप मुझे मूल के स्टोरियां मतलब सिखाएंगे। ओरिजिनल, मूल के Original? मतलब ओरिजिनल, राम बोलते हो, राम कथा यानी स्टोरी, द ओरिजिनल राम भाई स्टोरी। अब्दुल्ला भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछिए ये ना, कौन है पूछिए। पागलों की तरह? अलम जी अरे आप यार जरा स्क्रीन सुकून शेयर करें। कैसा मतलब कैसा शेयर होता है यार? शेयर नहीं हो रहा जी, ना? अब्दुल्ला साहब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? पूछिए, बिल्कुल पूछिए। चैप्टर को रामायण में क्या कहते हैं? एक चैप्टर को क्या कहते हैं रामायण में? नहीं पता। आपको खक भी नहीं पता है? आप कैसे बात कर सकते हैं एक वीडियो को लेकर के? कथा आपको बोल के संस्कृत नहीं दे होता रहा है, हूँ, वो आप कांड संस्कृत होता पढ़ है। लीजिए, पेज दे रहा हूँ, कांड पेज रहा हूँ भाई, वो कांड होता है। हर चैप्टर का ये नाम कांड जो होता है, सर आप कक ना कहा करें सर, आप कहें अम्ब का नहीं पता आपको। ये स्क्रीन शेयर कैसे होता है यार? यूनिवर्सल बोला भाई, नहीं ना इसमें। यूनिवर्सल साहब आप कहा करें अम्ब का नहीं पता आपको। जी। जी सर दिखा दीजिए यार, आज के दिन में यार एक स्क्रीन ही शेयर हो रही है आपसे। अरे पता नहीं कहाँ चले जा रहा हूँ। ये स्क्रीन अब शेयर वो आपकी गलती है, मेरी तो नहीं है ना। उसके बाद शेयर स्क्रीन, ओके, फिर और एक, हाँ पूरी स्क्रीन शेयर करा दें अपनी, अभी आपको दिखाते ये हैं तो हम। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। हाँ तो वही शेयर कर देना, ये उसके आ बाद गया, कुछ आ गया वो आपके दिखा पास? दें। अभी नहीं आई, शेयर करेगा, मेरे पास तो ओके मुझे करेगा स्क्रीन तो होगा ना। 168 मूल राम कथा।
ओ भाई राम कथा के कुछ लगते स्क्रीन शेयर कर। Dasaratha has 16,000 wives. ओ भाई Most स्क्रीन wives शेयर कर are पहले। 2 times. अरे स्क्रीन पर डाला हुआ हूं ना मैं तो, मुझे तो स्क्रीन नहीं पे डाला दिख हुआ रहा है, ना, तुमको नहीं दिख मुझे रहा नहीं नजर आ रही। पहले क्लिक ऑन द शेयर। एडम साहब वो वर्ष संस्कृत में दिखाने को बोलिए, मुझे तर्जुमा नहीं चाहिए, मैं पकड़ लेता हाँ हाँ वो वर्ष वो हम खुद वर्ष निकाल लेंगे ना, यही तो बात है। मुझे आप बताइए कि वो स्क्रीन दिखा तो चलिए, देना, आ उसकी गया, स्क्रीन आ नजर नहीं गया, आ रही, मैं क्या आ करूं? गया, आ गया, आ गया। आ गया जी, आ गया। ओके जी, ये सर अभी आया, रुके, वेट करें जी सर। ये जनाब हमारे पास कोई हिंदी लिखी हुई है, और अब आप रुक जाइएगा जनाब भाई, जरा करें इसको ट्रांसलेट, क्या कह रही हैं, ये कौन सी किताब है, क्या है ये तो पूरा हिंदी में है, हिंदी में तो रामायण नहीं है। ये किसने लिखा है, मतलब क्या है पहले पात्र का नाम? ये तो हिंदी है, नॉट संस्कृत। दिस इज नॉट Okay. वाल्मीकि रामायण। सो दिस इज नॉट वाल्मीकि रामायण जी, रामायण वाल्मीकि दिखाएं जी। रामायण ओरिजिनल रामायण नहीं है, रामास्वामी ओरिजिनल प्रिया रामायण की जो दिखाएं। रामायण है, दैट इज ओरिजिनल रामायण। कहाँ पे पड़ी हुई है ये वाल्मीकि रामायण? कॉपीड। अरे ओरिजिनल सर, आप जाइए मारिए, ओरिजिनल नेट पे कहाँ मिलेगा पड़ी है? आपको। रामास्वामी लिंक दे। प्रियार, रामास्वामी प्रियार, आपके सर इंग्लिश इसका लिंक दे, इसका लिंक दे। भाई वो रामास्वामी पेरियार जो है, रामास्वामी पेरियार जो है, उसने जो कुछ भी लिखा है वो सारे पॉलिटिकल बातें हैं। उसको भी कुछ नहीं पता, वो तमिलियन है, तो वो संस्कृत का कैसे लिख सकता है? उसको तेलुगु भी नहीं आता है, जो उसका पास का स्टेट है। हाई कोर्ट से लड़के उसकी जो रामायण भाई बैन हुई वो थी, तमिलियन है रामायण भाई, चालू उसको संस्कृत कराया। कहाँ से सारा आता लिंक है? ये सारा लिंक आपको पेश किया भाई अब्दुल्ला भाई, आपने बोला पेरियार को संस्कृत नहीं आती है, तो तर्जुमा कैसे किया उसने? आपको कैसे मालूम प्रियार को संस्कृत नहीं आती? उसने खुद बोला उसको संस्कृत नहीं। अरे भाई मैं तेलुगु स्टेट से हूँ, मेरे सामने तो मेरा पास ही है बता रहे हैं, तमिलनाडु। मेरे सामने इतनी बड़ी रामायण है जो ट्रांसलेट कर रहा है, पूरे पेजेस उसके लिखे हुए हैं। भाई original भी बता पेरियार रहा है, को duplicate भी बता रहा है। तमिल और मेरे इंग्लिश पास ये के भी है। अलावा सुनिए भाई, तमिल और इंग्लिश के अलावा उसको कुछ नहीं आता है, हिंदी भी नहीं आता है उसको। अरे यार अभी अब्दुल्ला जी, ये आपके हाँ जी। मोमिन आपको इतना गलत तरीके से बोंगिया इन्फॉर्मेशन क्यों देते हैं यार? ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट इन्फॉर्मेशन है, आप यकीन नहीं कर रहे। नहीं नहीं, लेकिन ये बोंगिया एक बंदा है स्क्रीन शेयर हो गया, समझ में आ गया। एक बंदा है, उसको संस्कृत नहीं आती। सुने मेरे बच्चे सुने, एक बंदा है, उसको संस्कृत आती नहीं है, वो उसकी ट्रांसलेशन कैसे करेगा? आती है उसको। अरे कैसे मालूम आपको? कहाँ नहीं पे? आती? मैं बोल रहा हूँ आती है उसको, आती है। बल्कि तो किस तरह लिखा वो जो कहाँ है, लिखा हुआ है? 6,000 कहाँ पेज लिखा के हुआ है? रामायण ट्रांसलेट करा, कहाँ लिखा हुआ 6,000 है? पेज के रामायण लिखा, कैसे लिखा? मेरे प्यारे भाई कहाँ लिखा हुआ है? 6,000 भाई मैं कोई भी बंदा कुछ भी बोल सकता है ना। अब देखे ना, चेन ऑफ बुक अपनी से बारी आई थी तो चेन ऑफ नरेशन आ गई थी, आपको याद? चलिए मैं नेट पे लिंक निकालता हूँ आपको अभी। अब्दुल्ला लिसन, रामास्वामी प्रियार। अम्मा सुन, पहले बोलिए। रुक जा, सुन। जब मैं हदीस दिखाता बोल हूँ, रहे भाई, हाँ। बोल मत। जब मैं हदीस दिखाता हूँ तो मैं उसकी ऑथेंटिसिटी और तुम्हें उसकी चेन ऑफ नरेशन, सही दईफ, ये सब कुछ याद आता है ना? हाँ। ओके, तो जब तुम किसी दूसरे का स्क्रिप्चर पकड़ते हो तो वहां पे तुम्हें क्यों नहीं याद आता कि मैं देखूं कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, दईफ है, किसी ने एमी लिख दी है, या उसके पास कुछ है, कुछ क्यों नहीं याद आता तुम्हें ऐसा पढ़ना? हिंदुइज्म में ये वेरीफाई करने का कोई चांस नहीं है ना इसमें। अब कोई किसी को चांस ये नहीं नहीं है। मालूम वाल्मीकि कौन था, उसका बाप क्या था, उसका माँ कहाँ था, एक डाकू जंगल में रहने वाला पढ़ा लिखा है, ये भी किसी को नहीं मालूम। तो ये तो वेद मुझे व्यास को मोहम्मद बड़ी- साहब के बारे में भी नहीं पता। सुनिए, एक सेकंड 18,000 आप रुके अब्दुल्ला हाँ, ये तमाम हाँ, बातें जो आपने की हैं, ये तो मोहम्मद हाँ। साहब के बारे में भी नहीं पता हमें। क्यों नहीं पता है? उनके वालिद साहब का कहाँ नहीं से पता पता है? आपको? कहाँ पे कैसे पता है? नहीं पता? आप जान कैसे? खोलिए, अब्दुल्ला कौन है, उनकी माँ कौन आमिना है? कौन है, कौन है? आज ये सब उनकी- कुछ आपको सुन ले। उनकी अब्दुल्ला खबर है। सुने हाँ, अब्दुल्ला, हाँ। ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट आई एम सेइंग। ये चलिए, सब कुछ बोलिए, सिर्फ बोलिए। इस्लामिक हदीसों में लिखा है और कहीं नहीं लिखा, हाँ, जी। ठीक है? आपको पता है तो फिर आप राम एक के सेकंड बाप ने बाप को अब्दुल्ला, हाँ, अमा लिसन हाँ, सुन ले पहले। जब तक हाँ। तुझे सवाल नहीं समझ आएगा जवाब कैसे देगा? बीच में बोल देगा तो जवाब कैसे देगा? चलिए बोलिए, ओके, बोलिए। अब ये सारा कुछ लिखा हुआ है हदीस की किताबों में, हाँ, ठीक है? हदीस ओके? किसने लिखी? हदीस किसने लिखी? 250 साल बाद मुसलमानों ने। एग्जैक्टली 250 साल हो गए ना? ओके, 250 साल के बाद हाँ, नहीं, 250 साल के बाद मुसलमानों ने लिखी, राइट? जी, एग्जैक्टली। ओके, नाउ अगर हम उस वक्त की कोई भी हिस्ट्री निकालें तो हाँ। मोहम्मद साहब के बारे में तो अंब का नहीं पता लगता हमें। किसी हाँ। और ने हिस्ट्री में कुछ लिखा नहीं उसके बारे में, सही ठीक है? उस वक्त सही की है। हिस्ट्री में कुछ नहीं लिखा, राइट? हाँ, तो भाई ये तमाम चीजें तो मोहम्मद साहब के ऊपर इंप्लीमेंट होती हैं 100%।
मोहम्मद साहब के वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्ला। नहीं, आप गलत कह रहे हैं, अब्दुल मुतालिब। आप गलत कह रहे हैं, क्यों? हदीस के मुताबिक गलत कह रहे हैं आप, अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतालिब। गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आपके वालिद का नाम क्या है? कोई भी नाम बताएं। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद शरफुद्दीन है। ओके, उनके वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद हाशिम। ओके, आप किसके बेटे हैं? मोहम्मद शरफुद्दीन। मोहम्मद हाशिम के तो नहीं है? नहीं है। ओके, ये देखिए सर, सही ये आपके पास हदीस आ गई सुनन इब्न माजा की। आई हर्ड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह से, वी आर द सन ऑफ अब्दुल मुत्तलिब एंड विल बी द लीडर ऑफ द पीपल ऑफ द पैराडाइज। ओके, एक और देखते हैं, सही बुखारी। Al-Barra was asked while I was listening, did you flee along with the Prophet on the day of the Battle of Hunain? He replied, as for the Prophet, he did not flee. The enemy were good archers and the Prophet was saying, I am the Prophet. Undoubtedly, I am the son of Abdul Muttalib. इसको देखते हैं अगर हम, इसको उर्दू में नहीं है, सॉरी इसकी उर्दू में नहीं है। I am the son Prophet. Undoubtedly, I am the son of Abdul Muttalib. मैंने अभी आपसे पूछा कि क्या आप अपने आप को अपने दादे का बेटा कहेंगे? आपने कहा नहीं, मैं तो शराफुद्दीन का बेटा ही कहूंगा। अगर चीफ मिनिस्टर, लेकिन अगर मेरे दादा प्राइम मिनिस्टर रहेंगे तो मैं दादा का नाम पहले लूंगा। अब्दुल मुत्तलिब वाज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर। लिसन वेरी केयरफुली, एरिया के वेरी लीडर केयरफुली, थे वो। वेरी केयरफुली। सुने, हेलो, मार्च टू अर्थ, चीखो मत यार, हार्ट अटैक आ जाएगा। चीखो मत, आहिस्ता से, मैं भी यही हूं। अर्थ टू मार्स, कनेक्शन खराब। ओके ओके ओके, यहाँ पे आपके जो प्यारे नबी हैं, उन्होंने तस्दीक की है कि वो अब्दुल्ला के बेटे नहीं है, वो अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं। क्यों? नहीं, ये बोलने का अरब में अंदाज होता है, बोलने का अरब में अंदाज होता है। क्यों? अरबों में बोलने का भाई अंदाज उनसे पूछा क्या जा रहा है, आप किसके बेटे हैं? जिसको पहचाने जाते हैं। हाँ सर, बोला क्या जा रहा है, आप किसके बेटे हैं? देखिए, मैं अब्दुल्ला जो है, आपके वालिद को लोग इतना नहीं जानते थे। सुने, सब जानते हैं, सब जानते हैं। नहीं जानते, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं, वो उन्होंने खुद कहा है। नहीं, वो अब्दुल मुत्तलिब जो है, अरबों में स्टाइल होता है बोलने का। दादा के अरबों में स्टाइल अभी स्टाइल बना है, अभी स्टाइल बना है, उससे पहले अभी स्टाइल नहीं था। नहीं, उससे पहले भी था, इसीलिए तो लिखा हुआ है आपके सामने, प्रूफ है, लिविंग प्रूफ, किताब में लिखा हुआ है। अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं मैं। I am the prophet and there is no lie about it. I am the son of Abdul Muttalib. क्यों? सही है। क्यों? How is he the son of Abdul Muttalib? ये कि वो जाने पहचाने शख्सियत थे, लोग उनको जानते थे। जाने पहचाने शख्सियत थे। उसने क्यों बोला कि मैं उसका बेटा हूँ? इसीलिए कि पोता है उनका। पोता है तो कहना चाहिए था ना कि मैं पोता हूँ। सन क्यों बोला है? हाँ, जैसे पोता बोलना चाहिए। ये देख, अरबी देख। अना इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। सर देखिए, इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। हाँ, उस वक्त अगर ये मोहम्मद साहब इतने ही सच्चे होते, इन्हें कहना चाहिए था अना इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल्लाह का बेटा हूं जो कि अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है। यहाँ पे क्या जा रहा है, अना इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा। अब्दुल्ला को साइड से निकाल दिया। अच्छा, अब इसके ऊपर आपने देखा, मैंने 2-3 वीडियो बनाई थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उनके बदन में अब्दुल्लाह का नुतफा नहीं था। आपने सुना है कभी? क्या? हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन में अब्दुल्लाह का नुतफा नहीं था। आपने सुना? नहीं सुना। नहीं सुना? नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। चले आपको दिखाता हूँ। ये आपके एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत बड़े, यूके में होते हैं जी। ठीक है, ये देखिएगा, ये ALRA TV है, ठीक है, और ये यहाँ पे अभी लेफ्ट साइड के ऊपर, जहाँ पे मेरा माउस इस वक्त मूव हो रहा है, यहाँ पे ये आपको अपना नंबर भी देंगे जिसको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप इनके साथ डिबेट करें, और मैं वो डिबेट देखना चाहूंगा। ठीक है, मुझे जरूर भेजिएगा। ये जरा सुने क्या कहते हैं, सुने जरा, माइक म्यूट कर ले, जरा सुने क्या कहते हैं। सुन्नत पर अमल क्यों नहीं करते? जो रोजाना फाकी का एक पत्थर बंधा था, एक साहबी आके कहता है, या रसूलुल्लाह, आज एक सेकंड सर, सॉरी, बीच में ये आ गया। खाना ही नहीं खाया,
फरमाया खैर है, अल्लाह करम करेगा, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने खाना नहीं खाया। आपने उठा दी चादर, 3 पत्थर बंधे हुए। अजमत कहां नजर आ रही है? हुजूर की अजमत कहां है? इमामुल अंबिया हैं, अजमत कहां है? अजमत यहां है। एक दिन जिब्राइल बीबी आमना के पास आए और उनको कहा कि मुझे अल्लाह ने भेजा है और आपके यहां विलादत होगी अल्लाह के महबूब की, आपके यहां विलादत होगी अल्लाह के महबूब की। उन्होंने कहा मेरे शौहर का तो इंतकाल होगा। तो जिब्रील ने कहा कि अल्लाह करता है जो कुछ भी वो चाहता है, अल्लाह करता है जो कुछ भी वो चाहता है। सफेद रंग का एक मशरूब जिब्रील अमी अपने साथ लाए, सफेद रंग का एक मशरूब जिब्रील अमी अपने साथ लाए और उसमें शिजरतुन नूर का एक बीज डला हुआ था। माशाअल्लाह, क्या माशाअल्लाह। आपने कुरान मजीद में पढ़ा होगा सिदरतुल मुंतहा, ये एक दरख्त का नाम है जो बॉर्डर पर है। इस दरख्त की जो है ना जामनी रंग की पत्तियां हैं, हर पत्ती पर किसी पर मोहम्मद लिखा है, किसी पर अहमद लिखा है, किसी पर महमूद लिखा है, किसी पर हामिद लिखा है। समझे? यही वो नूर था जो आदम सफीउल्लाह को अर्श पर नजर आया था, ये हुजूर का ही नूर था। उस दरख्त से एक नूर का बीज तोड़ा और उस सफेद मशरूब में मिलाकर जिब्रील अमीन ने बीबी आमना को पिला दिया। उसके पीने से आप हामला हुई। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मुबारक में अब्दुल्लाह का नुतफा नहीं था। जी सर, क्या कहते हैं? जी अब्दुल्ला जी, अब्दुल्ला जी, मेरे प्यारे भाई अब्दुल्ला जी, क्या हुआ आपको? अब्दुल्ला जी, अब्दुल्ला जी गए काम से। अब ये मैं नहीं कह रहा भाई, तुम्हारे अपने मोमिन स्कॉलर्स हाँ कह जी, रहे हैं। बोलो। हाँ जी, आपने क्या सुना? इन्होंने क्या कहा है? दोबारा कहाँ से सुने, कहा है? ये अपने आखिरी दिल से- आखिरी सेंटेंस दोबारा सुने। में पढ़ा होगा अपने दिल से कहा है। सिदरतुल मुंतहा, ये एक दरख्त का नाम है जो बॉर्डर पर है। इस दरख्त की जो है ना जामनी रंग की पत्तियां हैं, हर पत्ती पर किसी पर मोहम्मद लिखा है, किसी पर अहमद लिखा है, किसी पर महमूद लिखा है, किसी पर हामिद लिखा है। समझे? यही वो नूर था जो आदम सफीउल्लाह को अर्श पर नजर आया था। हाय ये हाय हुजूर हाय का ही हाय नूर था। हाय। उस दरख्त से एक नूर का बीज तोड़ा और उस सफेद मशरूब में मिलाकर जिब्रील अमीन ने पेट में हमला हुई थी हजरत आमना, बीबी आमना को खिला दिया, मैदे में हमला हुई थी। पिला दिया। उसके पीने से आप हामला हुई। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहाँ से वजूद बनाया मुबारक भाई? में अब्दुल्लाह का नुतफा ये नहीं कहाँ से था। बनाया है? अभी उन्होंने क्या कहा? आखिरी बात सुनिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बदन मुबारक में अब्दुल्लाह का नुतफा नहीं था। अरे कहाँ से बनाया इन्हें? सर ये आप ऐसा करें, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म। ये इनका व्हाट्सएप नंबर है, ये देखिए मैं आपको दिखा, ये इससे क्या ये समझ इनका आप व्हाट्सएप मुझे नंबर है। दे रहे हो, आप बताओ ये कहाँ सर से सर लाया सर हो? सर 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 ये देखिए, ये व्हाट्सएप इसका नंबर है नाम इनका। बताओ। सर हाँ। ये आपके स्कॉलर है ना, मैं तो चाहता हूँ आप लोग जाएं इनके पास और इनके पास जाके इनसे पूछें कि ये देखिए, ये व्हाट्सएप नंबर है इनका +44 7380 315726। आप इनको कॉल भी करें। तो हमारे स्कॉलर हैं, आप भी तो रास्ते से अम्मा भटक गए, यार, आप भी मैं तो स्कॉलर थे ना। जैसा भी स्कॉलर हूँ, मेरे को तो आप मानो या हाँ। ना मानो, ठीक है? मेरे को मानो, मेरे को ना मानो, मैं तो वैसे ही मुर्तद, मुझे तो आप लोग मानते ही नहीं। मैंने तो साबित मुर्तद किया क्यों था आप कि ये बताएं मुझे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हजरत अब्दुल्लाह की वफात के 2.5 साल बाद पैदा हुए थे। नहीं, तो यहाँ तो आप 2.5 साल की प्रेगनेंसी मानते हैं। अगर आप मेरी डिबेट देखें जो कि 2 हफ्ते पहले हुई थी 2 देवबंदी स्कॉलर्स के साथ साहिल के चैनल पे, मैंने उनसे यही सवाल किया था कि इमाम अबू हनीफा के मुताबिक प्रेगनेंसी कितनी देर रह सकती है? उन्होंने कहा 2.5 साल। क्यों? क्योंकि मोहम्मद साहब अब्दुल्लाह के वफात के 2.5 साल बाद पैदा हुए थे, तो 2.5 साल तक प्रेगनेंसी रह सकती है। तो उन्होंने इस चीज को एग्री किया था। तो भाई देखो, यहाँ तो आपको 2.5 साल की प्रेगनेंसी माननी पड़ेगी। ये कहीं से भी उठा के ला के आप मेरे को मान लो बोलते, कैसे मानूंगा मैं? भाई बताता हूँ कहाँ लिखा है, डोंट वरी, मैंने सब साबित किया हुआ है। मेरी एक 4 घंटे की वीडियो है, सुन ले ताकि आपको पता लग जाए। बोलिए 4 घंटे की वीडियो मेरी, जिसमें मैंने साबित किया था पैदाइश, हजरत मोहम्मद की पैदाइश, उसका पार्ट 1 है। फिर मैंने पार्ट 2 बनाया, मुफ्ती बमदर्द के जवाब के ऊपर मैंने पार्ट 2 बनाया, ठीक है? और फिर वो पार्ट 2 को मुफ्ती बमदर्द ने बैन करवाया पाकिस्तान में।
تو میں نے مفتی بمدرد کے لیے اس پارٹ 2 میں سے 45 منٹس کی ایکسٹریکٹ کر کے ایک اور ویڈیو بنائی, حضرت محمد کی پیدائش مفتی بمدرد کو جواب. وہ تقریباً 2 ہفتے میرے چینل پہ چلی اور پھر مفتی بمدرد نے اس کو بھی بین کروا دیا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ تو میں نے پروف کر دیا, اور آج کی لائف اسٹریم میں دوبارہ پروف نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, آپ جا کے دیکھیے, دیکھ کے آئیے اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ نے لیا کہاں سے, کس کی بک کو فالو کیا آپ نے؟ سر ساری بکس فالو کی ہیں میں آپ بتا رہا ہوں, آپ جا کے پڑھیے گا, آپ جا کے دیکھیے. کر رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 250 سال کی بات جو ہے ریسرچ ہوئی, آپ یہ اگری کر رہے ہو, تو اس کا مطلب اسلام سارا کا سارا ضعیف ہوا. سارے کا سارا کیسا ضعیف ہوگا یار؟ سارا کا سارا ضعیف ہوا نا, کیونکہ 250 سال حافظ ان کو اس کو غلط ثابت کر کے دکھا دیں. سر وہی بتا رہا ہوں نا, دیکھیے اگر تو سارا کچھ آپ کے مطابق 250 سال کے بعد لکھا گیا, ٹھیک ہے, اور اس وجہ سے محمد صاحب 250 سال بعد پیدا نہیں ہوئے, تو آپ کے چاروں مذاہب کے جو اسکالر ہیں, آپ کون سے مذہب کو مانتے ہیں؟ حنفی ہیں, شافعی ہیں, حنبلی ہیں, مالکی ہیں؟ میں سب کو مانتا ہوں. سب کو مانتے ہیں, اوکے. امام ابو حنیفہ کے مطابق 2.5 سال, امام شافعی, امام مالک, امام حنبل کے مطابق 4 سال. یہ پریگنینسی کی عمر ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے مطابق محمد صاحب کی برتھ جو ہے عبداللہ کی وفات کے یا تو 4 سال بعد ہوئی ہے یا 2.5 سال بعد ہوئی ہے. تو یہ تو سر سمپل سی لاجک ہے. اب چاروں کو مانتے ہیں نا, تو یا تو آپ 4 سال کی لانگسٹ پریگنینسی لے رہے ہیں یا آپ 2.5 سال کی لے رہے ہیں, کون سی لے رہے ہیں؟ نہیں, ان لوگوں نے غلط کہا. اچھا, چاروں نے غلط کہا, وہ جہنمی ہوں گے؟ کیوں ضروری ماننا تھوڑی ہے, ان کی ہر بات ماننا تھوڑی ضروری ہے. نہیں, وہ جہنمی ہے. صحیح ہے, وہ جہنمی ہے. وہ جہنمی ہوں گے بھائی میرے. ہاں, انہوں نے اپنا خیال رکھا, اپنا جو نہیں, وہ جہنمی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہوں گے. جہنمی نہیں ہے. نہیں ہے, اوکے. وہ جہنمی بھی نہیں ہے, لیکن انہوں نے غلط کہا اور محمد صاحب کے اوپر تہمت باندھی, تو جہنمی کیوں نہیں ہے؟ اپنی ریسرچ ہے, اپنا ریسرچ لکھا, لکھ کے بولا. اچھا چلے, آپ ریسرچ دکھا دیں کہ محمد صاحب کی پیدائش انہوں نے لکھا, اس کی بھی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے نا. سر میں وہی کہہ رہا ہوں نا, کتاب ہی نہیں لکھی ہے. سر اپنی ریسرچ دے دیں. ہیلو, اپنی ریسرچ دے دیں کہ محمد صاحب کی پیدائش عبداللہ کی وفات کے کتنی دیر بعد ہوئی, ذرا وہ ریسرچ دے دیں. 9 مہینے کے بعد. 9 مہینے کے بعد, 6 مہینے کے بعد ہوئی. 6 مہینے کے بعد. پلیز مجھے دے دیں. کہاں سے لیا آپ نے ریفرنس؟ اب مجھے نکالنا پڑے گا. نکالیں, جائیں آپ نکالیں, میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں.